एक चिट्ठी था जो श्री आर.बी. सिन्हा डीजी आरसी ने 13 जुलाई 2010 को लिखा श्रीमती रेखा गुप्ता के लिए, डिप्टी CNDG। नहीं, वो इस समय कहाँ सवाल है, उनको आवाज़ वैसे नहीं है इसी में सर। नहीं, वो तो उनकी उसमें जा रही है। मैंने कहा आप सब लोगों को तो सुन रहा है, आपका कुछ कमज़ोर लगता है सिस्टम, सबके में नहीं आ रही है। तो ये फिर कुछ ये फिर कुछ चालबाजी है। अब आ रही है आपके में कि सबके में? अच्छा, गुड। तो उन्होंने मिस्टर आर.बी. सिन्हा ने, जो DGRC हैं, उन्होंने 13 जुलाई 2010 को एक नोट लिखा जो कल सर्कुलेट किया गया है, और उसमें नोट में उन्होंने ये बताया है कि at 11:30 आई रिसीव्ड ए कॉल ऑन माई मोबाइल फ्रॉम श्री P.K. जैन, श्री PS, senior PS to the chairman Public Accounts Committee, saying that Shri Murali Manohar Joshi, chairman PSC, wants to speak to me. Me means Mr. Sinha. Then chairman Shri Joshi came online and stated that in the last meeting, perhaps CAG had informed him that the records of Ministry of Finance related to the telecom licenses and spectrum issues were being looked into by this office. He also stated that the finance secretary had also offered to make available documents / files for the C&AG's examination in the last meeting. When I informed him that an audit party had already requisitioned the documents from Ministry of Finance and were examining them, he said that there was tremendous pressure on him from the parliamentarians, media, etc., about the examination being done by the Public Accounts Committee in respect of recent development in the telecom sector, including allocation of 2G and 3G spectrum, and that if probe is further delayed, the executive would get the time to cover up the issues. He further stated that in view of the tremendous interest, heightened anxieties and pressure from all concerned, including media, it would be appropriate for the PSC also to submit its report soon after the CAG's report is submitted to the President during the monsoon session. He further stated that it would be appropriate that this office briefs him and the committee in 2 and 3 days after the next meeting of the PSC scheduled to be held on 15th and 16th July. I informed him that this matter will need to be taken up with the C&AG of India. This was referred to Srimati Rekha Gupta. Notes shown above as submitted for kind information. I have briefed CAG on the status of work this morning. CAG has seen it, दस्तखत किया, और उसके बाद वो जैसे जैसे फाइल जाती है वो क्लर्कों के दस्तखत होकर फाइल बंद हो गई, नथिंग एल्स. अब this has been taken as if the office of the C&AG is being pressurized to give report and all that. ये कहा जा रहा है, this is all bogus, totally false, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, और सिर्फ PSC और CAG को बदनाम करने के द्वेषपूर्ण इरादे से दिया गया है. मेलाफाइड इंटेंशन, इसमें और कुछ नहीं है, या टोटल इग्नोरेंस. देखिए, CAG ये PSC ने ये काम 2G का मेरे आने से पहले ले लिया था, जब श्री मुंडे जी थे इसके चेयरमैन, और 26 या 28 जनवरी को CAG से जब ये पूछा गया कि भाई हमने तो काम शुरू कर दिया है, आपकी रिपोर्ट कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट कहाँ है, तो CAG ने उस समय जवाब दिया
कि हम 6 महीने में ये रिपोर्ट पेश कर दें। इसका सबूत है हमारे पास। इसके अलावा कि मैं कह रहा हूँ, मिस्टर आरबी सिन्हा जो उस समय डायरेक्टर जनरल थे आरसी इसमें सीएजी के दफ्तर में, वो इन मिस्टर आरपी सिंह को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्लीज़ रेफर टू दिस ऑफिस नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो डेटेड 27/11/9। उस समय इनको ये कहा जा रहा है कि आप इसको बताइए कि आप क्या कर रहे हो इसमें। रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑन वर्क डन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ इशू ऑफ लाइसेंसेज and allocation of spectrum by DOT under which it was required to furnish fortnightly progress report। इनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आप बताइए आपने क्या काम, कब? 2009 में। आई वॉज नॉट देयर, मुंडे जी भी नहीं थे उसमें, जसवंत सिंह जी। फर्दर दिस ऑफिस वाइड लेटर नंबर सो एंड सो had communicated time schedule for audit of revenue sharing of private service providers. Latest position of audit in respect of the above subjects may be intimated। तो ये आदमी काम नहीं कर रहे थे, इनसे बार बार पूछा जा रहा था कि भाई लाओ रिपोर्ट लाओ, नहीं थे। In this connection, I am directed to inform you that in the PAC meeting held on 28th January 2010, CAG has given an assurance that the findings on allocation of 2G spectrum as also revenue sharing will be ready within 6 months. You are therefore requested to ensure that the time schedule approved by headquarter office is maintained and the draft report on the above topics is submitted to us well in time। ये आपको दे देंगे हम चिट्ठी। हाँ चिट्ठी देंगे आपको, आप चिंता मत करिए, हम बिना इसके बात करते ही नहीं हैं। तो ये उससे कहा गया। अब किस्सा क्या है इसमें, जब हमने काम शुरू किया तो हमने इनसे पूछा सीएजी वालों से कि भाई ये रिपोर्ट, साहब रिपोर्ट तो हम तब बनाए जब हमें डॉक्यूमेंट्स मिले। क्या है कि साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि सीबीआई डॉक्यूमेंट्स ले गई है, इसलिए हमारे पास है नहीं। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमने अब डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, जिसका रेफर वो कर रहे हैं ना। ये मैंने ही उनको बताया था कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हमने अब डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा था कि आप क्या बात कर रहे हो, सीबीआई ओरिजिनल फाइल थोड़ी ले गई होगी, फ़ोटो कॉपी करके ले गई होगी, आपके पास ओरिजिनल फाइल होगी, उसमें से दे दीजिए। फ़ोटो कॉपी अगर ओरिजिनल फाइल ले गई है तो फ़ोटो कॉपी आपके पास होगी, ये तो इम्पॉसिबल है कि आपके पास मटेरियल ना हो, इसलिए आप इनको दीजिए। तो इसलिए 12-13 जुलाई को जब हमारी मीटिंग होने वाली थी 16-17 को, तो इसके लिए हमें ज़रूरी था कि भाई 28 तारीख को तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द रिपोर्ट? इसलिए हमने उनसे ये कहा कि अब आप रिपोर्ट कब दे रहे हैं, इसका स्टेटस क्या है। प्रेस वाले भी पूछ रहे हैं, मेंबर्स भी पूछ रहे हैं कि जब सीएजी ने ये एश्योरेंस दिया कि हम 6 महीने में रिपोर्ट दे देंगे, तो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वेयर इज़ द रिपोर्ट? व्हाट इज़ द रीज़न? तो इसलिए आप इसको जल्दी करिए और रिपोर्ट दीजिए। आप इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए आप। माइक को लगा नहीं है, टीवी वाला बस माइक नहीं है ना, मैंने कहा था हमसे तो एक यहाँ सिस्टम रखना। तो दिस हैपन, और उनसे कहा गया कि भाई आप बताइए और कमेटी को और मुझे ब्रीफ करिए कि स्टेटस क्या है रिपोर्ट का, आपकी कब तक बनेगी, क्या लेवल है, कहाँ हो रहा है। दिस इज़ दी रीज़न ऑफ माई टेलीफोनिंग हिम। और ये मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि जब एश्योरेंस कमेटी को दिया गया है कि 6 महीने में रिपोर्ट मिलेगी, तो कमेटी हैज़ अ राइट टू आस्क कि भाई ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई और कब आ रही है और इसका क्या स्टेटस है, और हमें आप बताइए। मैंने ये थोड़ी कहा मेरे घर में आके बैठिए और इसके लॉस का की गणना कीजिए। आई हैव सेड ब्रीफ मी एंड द कमेटी, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। तो ये सिर्फ दिस इज एक मेलाफाइडी है, ये दिखाने के लिए कि C&AG दबाव में थे और उन्होंने ये सब दबाव में किया है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं C&AG बहुत अच्छा काम करता है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं बहुत अच्छा काम करता है,
टुडे आई हैव स्पोकन एंड गिवन umpteenth एग्जाम्पल्स, जबकि C&AG की हैसियत और ये और वो क्या क्या कहा है अभी आज दोपहर के फंक्शन में मैंने बताया। तो उसके बाद अगर अनकंफर्टेबल रिपोर्ट आई है उसकी, और अगर PSC की इंक्वायरी आपके लिए अनपैलेटेबल है, हजम नहीं हो रही है, तो आप बदनाम करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि इसको दबाव में डाला जा रहा है। वो तब तो PSC के चेयरमैन बहुत अच्छे थे, बड़े शाइस्ता थे, बड़े विद्वान थे, बड़े ऑब्जेक्टिव थे, इसलिए तो PM हमारे सामने आने को तैयार थे। अब कहा जा रहा है कि हम दबाव डालें। PM जो मेरे सामने आने को तैयार थे वो इस 13 जुलाई के बाद सितंबर अक्टूबर में उन्होंने कहा हम तो आने को तैयार हैं, तो इसके बाद भी वो तो हमारे पास आने को तैयार। और अगर इसमें कहीं ये हो कि हमने उनसे कहा कि लॉस ऐसा करो या वैसा करो, नथिंग, इट्स नॉट माई जॉब, इट इज़ नेवर डन, वी नेवर इंटरेक्ट विद C&AG ऑन दिस पॉइंट्स। व्हाट वी इंटरेक्ट इज रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट क्यों नहीं आई, और रिपोर्ट अगर आ गई है तो उसके बेसिस पे हम मिनिस्ट्रीज को जांच करेंगे। This is the position, and I will protect this position of the PSC and CAG as chairman of the PSC. As even if I'm not as a chairman, then as a member, as a believer in the constitution, जो position है constitutional CAG और PSC की, that cannot be compromised. और ये जो इसकी कोशिश की जा रही है to malign the CAG, I protest very strongly against it. और मैं ये कहना चाहता हूँ UPA के लोगों से कि they should not try to dismantle these institutions. They are trying to dismantle these institutions. They are trying to malign these institutions. सिर्फ 2 institutions हैं जो सरकार के ऊपर चौकसी रखती हैं। सिर्फ 2 institutions हैं जो सरकार की लापरवाहियों का और जानबूझकर किए गए स्कैम्स का पर्दाफाश करती हैं और सरकार को बताती हैं कि ये गलती है। सरकार को उस पर करेक्टिव एक्शन लेना होगा, लेकिन आप उन इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दैट्स रॉन्ग, एंड वी से कि ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये शरारत से बाज आना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को उनकी ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को पूरे तौर पर ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। दे डिमांडेड कि ये सारी बातें बंद होनी चाहिए। हाँ जी सर, ये पर्सनली PSC के चेयरमैन का अपमान है या पार्लियामेंट्री कमेटी का अपमान? देखिए, ये पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को डिनिग्रेट किया जा रहा है, उनका अवमूल्यन किया जा रहा है। पहले Is there any record of your communication to the finance ministry that they have sent the documents to the CBI etc. और इसीलिए There is no record। तो बात होती है ना कि भाई आप इनको दे रहे हैं फाइल, तो दे देंगे। This happened long back। देखिए भाई, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? हर चीज़ का रिकॉर्ड थोड़ी होता है। But when he said that those documents they are not able to access because it has gone to the CBI. That was long back। That they have said also orally। They had assured you that within 6 months they will be. हाँ, ये तो assurance 6 months में तो CAG कहता है हम रिपोर्ट। That was never put on record. What? That the fact that they were not able to give a report because it has gone to the That they CBI. had told us। तभी तो हमने उनसे पूछा। वो बताया, लेकिन वो रिकॉर्ड पे किसी letter नहीं, मुझे में पता नहीं वो किसी रिकॉर्ड पे में थे। We don't write things like this। I am not Mr. सिन्हा कि मैं मुझे कल को चल के कुछ आपके साथ करना है। These are things which may happen। कि क्यों नहीं आ रही? These are normal things। हर चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आएगी ना। रिकॉर्ड पे तो वो सैलिएंट बात आएगी जो किसी इशू से सीधे जुड़ी हुई है। ये तो एक कॉमन बात है। हम CAG से पूछ रहे हैं भाई रिपोर्ट कब आएगी?